اسرائیل پر قیامت ڈھا دی۔ ایرانی میزائلوں نے کئی علاقوں کو ڈائریکٹ ہٹ کیا، 9 صہیونی ہلاک اور 180 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ آپریشن وعدہ صادق کی نئی لہر، حیدر سے اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی۔ فتح، قدر اور عماد میزائلوں کی طاقت سے تل ابیب، ایلات، بیر الصبا، ڈمونا اور اراد کے علاقے لرز اٹھے۔ درجنوں عمارتیں ملیامیٹ۔ اسرائیل کے ایٹمی مرکز ڈمونا اور اراد میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اس کے علاوہ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ اسرائیلی کابینہ نے ہنگامی اجلاس میں صورتحال پر غور کیا۔ IAEA نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ میزائلوں کی گھن گرج، شعلوں کی لپک، ایران اسرائیل پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ دشمن کا غرور چکنا چور کر دیا۔ تہران کے حملوں سے صہیونی علاقوں میں تباہی۔ آپریشن وعدہ صادق کی نئی لہر، حیدر نے دھاک بٹھا دی۔ ایران نے فتح، قدر اور عماد میزائل داغے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام مکمل ناکام۔ تل ابیب، ایلات اور بیر الصبا میں بڑے پیمانے پر نقصان۔ ڈمونا اور ایراد میں درجنوں عمارتیں ملیامیٹ۔ اسرائیل کا ایٹمی مرکز بھی نشانے پر آ گیا۔ ڈمونا اور ایراد میں ایمرجنسی نافذ۔ تعلیمی ادارے بند۔ ایرانی یلغار سے اسرائیلی حکومت خوفزدہ۔ جنگی مجرم نیتن یاہو کی کابینہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہنگامی اجلاس میں صورتحال پر غور۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گراسسی کا کہنا ہے ڈمونا ایٹمی پلانٹ کی سرگرمیوں پر گہری نظر ہے۔ غیر معمولی تابکاری کے شواہد نہیں ملے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، جوہری تنصیبات پر حملوں سے گریز کریں۔ اور اسرائیل کے آسمانوں پر ایران کا تسلط، مقبوضہ علاقوں پر غلبہ حاصل کر لیا، جہاں چاہیں گے حملہ کریں گے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر سید ماجد موسوی کا اعلان، کہا نئی حکمت عملی اور لانچ سسٹم سے امریکی اور صہیونی کمانڈر حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات بھی تہران کے نشانے پر۔ UAE کے شمال میں بحری جہاز پر راکٹ داغ دیے۔ عملہ محفوظ رہا، ریاض اور UAE نے مزید حملے ناکام بنا دیے۔ ایرانی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آج خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں کوئی جہاز نظر نہیں آیا۔ دشمن کے ہاتھ کھڑے کرنے تک جنگ پوری شدت سے جاری رہے گی۔ ایران نے ہرمز جزیرے کے قریب دشمن کے F-15 لڑاکا طیارے کو گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی فوج کے مطابق طیارے کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران میں مختلف مقامات پر بھی دشمن کے 2 ڈرونز گرائے گئے۔ خطے پر جنگ مسلط کرنے والے امریکہ اور اسرائیل کی انسانیت دشمنی، ایران کے پانی اور توانائی کے پلانٹس پر حملے، دماوند، مشرقی اور مغربی تہران میں خوفناک دھماکے۔ دشمن کے حملوں سے پانی اور بجلی کے نظام کو نقصان پہنچا۔ ایرانی وزیر توانائی کی تصدیق، کہتے ہیں متاثرہ مراکز کی مرمت جاری ہے۔ دشمن کے حملوں سے اب تک 1400 سے زائد ایرانی شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کا ایرانی بیلسٹک میزائل پلانٹ تباہ کرنے کا دعویٰ، صہیونی فوج کی لبنان پر بھی جا رہی ہے۔ زمینی اور فضائی کارروائیاں تیز، حزب اللہ کے 10 اراکین شہید، 4 لبنانی شہری بھی جاں بحق ہو گئے۔ کبھی جنگ ختم کرنے کا اعلان، کبھی حملوں کی بڑکے، ٹرمپ کے ہر روز نئے پینترے۔ 48 گھنٹے میں آبنائے ہرمز نہ کھلی تو ایران کے بجلی گھر تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کی پھر دھمکی، کہا سب سے پہلے بڑے پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کو نقشے سے مٹا دیا، تہران اب ڈیل چاہتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا۔ ایران کا توانائی انفراسٹرکچر پر کسی صورت حملہ، جوابی حملوں کا اعلان ہوگا۔ بجلی پر گھر پر حملہ ہوا تو آبنائے ہرمز مکمل بند کر دیں گے۔ امریکی صدر کے بیان پر پاسداران انقلاب کا 2 ٹوک پیغام، کہا امریکہ سے منسلک توانائی کمپنیز کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ ایرانی میری ٹائم آرگنائزیشن کے مطابق آبنائے ہرمز صرف دشمنوں کے لیے بند ہے، غیر ملکی جہاز ہماری اجازت سے ہی گزر سکتے ہیں۔ ایران پر حملوں کے خلاف امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی۔ ڈیموکریٹ رکن یاسمین انصاری کی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید، کہا وائٹ ہاؤس اور ظالم اور پاگل شخص قابض ہے، وہ امریکہ اور پوری دنیا کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ سینیٹر کرس مرفی بولے کہ ٹرمپ گھبراہٹ کا شکار ہیں، ایران جنگ پر ان کی گرفت کمزور ہو چکی ہے۔ سابق امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے آگے چٹان اور پیچھے کھائی ہے، وہ اس وقت شدید مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا نتیجہ ٹھیک نہیں رہا۔ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہم میدان میں بے قابو بیانات اور لاپرواہ دھمکیوں کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔
ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी अमेरिका की मायूसी जाहिर करती है। ईरान की बुनियादें मजबूत और इदारे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान के पावर प्लांट्स और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया जाए। अगर हमला हुआ तो खित्ते में मौजूद तंसीबात जायज़ हदफ समझी जाएंगी। ईरान किसी भी हमले का सख्त और मौसर रद्दअमल देगा। खित्ते में मौजूद तंसीबात को तबाह कर दिया जाएगा। तवानाई तंसीबात पर हमलों से तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर चली जाएंगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का ओमानी हम मनसब को फ़ोन मौक़िफ़ से आगाह किया। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर से भी राबता। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत की गई। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सिफारती इक़दाम। ईरानी सिफारतखाने के फ़ौजी अताशी और दीगर एहलकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। मुतल्लिका एहलकारों को 24 घंटों में सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी हुकूमत का कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाने का आज़म। सरजमीन, शहरियों और मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान की जानिब से मुमलिकत पर हमलों की शदीद मज़म्मत की। खलीज ताउन काउंसिल, अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत की है। अमेरिका वेनेजुएला और ईरान का तेल हथियाना चाहता है। मशरिक़ वस्ता में ज़बरदस्ती के मुआहदे नहीं किए जा सकते। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। कहा रूस के पास जदीद फ़ौजी ताकत मौजूद है। दुनिया इस वक्त ताकत के तवाज़ुन की तरफ वापस जा रही है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम किया जा रहा है। अमेरिका को सिर्फ अपने मफादात अजीज़ हैं। वो यूक्रेन के मामले पर रियायतें चाहता है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस 26 मार्च से ही शुरू होंगे, लेकिन ग्राउंड में शायकीन को आने की इजाज़त नहीं होगी। इफ्तिताही तकरीब मंसूब। मुकाबलों की मेज़बानी सिर्फ लाहौर और कराची करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं खित्ते की सूरत हाल बेहतर होने तक ग्राउंड में क्राउड की एंट्री नहीं होगी। मेज़बानी से महरूम होने वाले शहरियों के लिए शायकीन से पहले से ही माजरत कर ली है। गेट मनी की मद में फ्रेंचाइजीज का नुकसान PCB पूरा करेगा। बड़े फैसले की बात करते हैं। हाई ऑक्टेन पर लेवी में 200 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। अब 100 की बजाय 300 रुपए फी लीटर लेवी वसूल की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में बड़ा फैसला। हुकूमत को माहाना 9 अरब रुपए की बचत होगी। इस रकम से अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल फ्यूल पर लेवी बढ़नी चाहिए। एलामिया के मुताबिक इस फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाजों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। जंगी हालात की वजह से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा। तेल की मुसलसल सप्लाई के लिए पुरज़्म है। फैसला किया है कि कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुस्तहिक तबके के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज बना रहे हैं। आरम साहब की हिदायत पर कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वेदर डीजल, क्रूड, पेट्रोल, अब तक हुकूमत 69 बिलियन का बोझ ले चुकी है। पेट्रोल है, डीजल है, बाकी मॉलिक्यूल्स हैं। हम उनकी सप्लाई जो है उसको अनइंटरप्टेड प्रोवाइड कर सकें पाकिस्तान में। दुआ गो हैं कि जो जंगी हालात हैं और जो इलाकाई तनाज़े हैं इस वक्त वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सकता है कि सूरत हाल कुछ हफ्तों तक या खुदा ना खास्ता कुछ महीनों तक भी ये बरकरार रहे। हमारे वसाइल जो हैं वो लामहदूद नहीं है, इसलिए हमें कुछ दायमी इक़दामात लेने हैं ताकि हम इस सूरत हाल को परमानेंस की तरफ लेकर जा सकें। तो जनाब आज ईद का दूसरा रोज है और रेस्टोरेंट्स पर शहरियों का बड़ा रश है। मजेदार खानों के साथ गपशप और सेल्फियों का दौर भी चल पड़ा है। तो कराची से शहरियार साजिद हमें ज्वाइन करेंगे और इस्लामाबाद से हमें अलीना शाहिद ज्वाइन करेंगी। तो इनसे जानेंगे कि किस तरह से आज शहरी जो है ईद का दूसरा रोज एंजॉय कर रहे हैं। शहरियार आप बताइए कराची वाले किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद का दूसरा और शहर कराची की रौनकें जो हैं वो भी डबल हुई हुई हैं। इस वक्त मैं कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर बेइंतहा लोगों का रश है और ईद के दूसरे दिन को खूब जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ खाबे यहाँ पे खाए जा रहे हैं। मैं खुद एक रेस्टोरेंट के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ मंदी मैंने खुद भी ऑर्डर की हुई है और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर मंदी खा रहे हैं। तो इनसे भी बातचीत करूंगा, इनसे पूछूंगा ईद का दूसरा दिन जो है इनका कैसा गुजर रहा है। दोस्तों के साथ निकले, एंजॉय करा। पहले फेरियल हॉल गए, अब बंसरूड आए खाना खाने। पहले दिन कहाँ थे? पहले दिन तो फैमिली के साथ दिन गुजारा, पूरा दावतें वावतें थी तो उसमें पूरा दिन गुजरा हमारा माशाल्लाह से। पहला दिन भी अच्छा गुजरा और दूसरा दिन भी अच्छा गुजर रहा है। बिल्कुल, पहला दिन जो है वो रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ गुजारा और दूसरा दिन जो है वो अब यहाँ पे दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और खूब जो है वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ खाबे जो है वो इस वक्त मुझे टेबल्स के ऊपर जो है वो नज़र आ रहे हैं।
खुशबू भी बहुत अच्छी यहाँ पर आ रही है और मुख्तलिफ खाने जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। जी चलें जी, शहरियार ने तो अपने खाने का भी इंतजाम कर लिया, साथ सिद्रा, इस्लामाबाद आपके मुंह से भी पानी आ रहा है। अलीना की जानिब चलते हैं। अलीना, ईदी शीदी तो बटोर ली सब ने, अब लगता है सबका ख्वाबों की जानिब मूड बढ़ रहा है, तो बताइए इस्लामाबाद में किन किन खानों के पॉइंट्स की जानिब रुख कर रहे हैं लोग, कैसे एंजॉय कर रहे हैं ईद को? जी बिल्कुल, ईद का दूसरा है और पूरा दिन ही जहां ईद की खुशियां उरूज पर रहीं, सैर सपाटे चलते रहे, दूसरे शहरों से भी लोग जो है वो इस्लामाबाद आए और भरपूर तरीके से ईद को एंजॉय करते रहे। तो पूरा दिन की थकावट उतारने इस वक्त इस्लामाबाद के शहरी और जो दीगर शहरों से आए लोग हैं वो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर पहुँच चुके हैं, मज़े मज़े के ख्वाबों से महजूज हो रहे हैं। किसी के लिए तवा चिकन बन रहा है तो किसी के लिए बारबेक्यू हो रहा है, कोई मलाई बोटी खा रहा है, तो अपनी अपनी फरमाइश चल रही है। बच्चे भी अपनी मन मर्जी की चीज़ें खा रहे हैं और बड़े भी अपनी मर्जी का जो खाना है वो खा रहे हैं। और ख़वातीन की कोशिश ईद पर यही होती है कि घर का चूल्हा ना जलाया जाए, और क्योंकि आम दिनों में भी वो किचन में होती हैं तो ईद पर कम से कम उनकी ये कोशिश होती है कि वो बाहरी खाना खाएं, एंजॉय करें, अच्छे तरीके से अपनी ईद को एंजॉय करें। तो इस्लामाबाद में तो ये सिचुएशन है कि जितने भी फूड पॉइंट्स हैं वो फैमिलीज से भर चुके हैं, फैमिलीज आ रही हैं, अपने ऑर्डर दे रही हैं और भरपूर तरीके से जो है वो ईद खाने का भी लुत्फ़ उठा रहे हैं और ईद भी एंजॉय कर रहे हैं। जी अलीना, पूरा रमज़ान घर का खाने के बाद आज तो बनता है, ईद का पहला और दूसरा दिन तो बनता है कि बाहर से ही खाया जाए। आपका भी बेहद शुक्रिया और शहरयार आपका भी बेहद शुक्रिया।